Morning friends, myself Dr. UK Yadav, PGT Bio, JNV Samastipur. Today I would like to give in a nutshell the idea regarding blood group. Previously we have talked regarding ABO blood group and today it is a turn for RH factor. Whenever we are visualizing or the blood group is written, sometimes it is positive and sometimes it is negative. Suppose anybody is blood group AB, then that AB must be AB positive or AB negative. Likewise, blood group A, B or O all are either positive or negative. So, what this positive and negative means? This positive and negative is meant for another factor. Factor means the presence of antigen on the membrane of RBC. RBC के मेम्ब्रेन पे एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन है. जो ABO ब्लड ग्रुप है वहाँ क्या है, ओलिगोसैकेराइड, दैट इज स्टार्च. छोटे छोटे जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो मोनोसैकेराइड्स मिल करके छोटा चेन बनाते हैं. वो है कहाँ, ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ RBC, दैट डिसाइड्स ABO ब्लड ग्रुपिंग. But for RH factor, for positive and negative, it is a special type of protein. और इस प्रोटीन को बनाने के लिए जो इसके जीन होंगे that is available on फर्स्ट क्रोमोजोम. जो पहला क्रोमोजोम है वो डिसाइडर होगा, उसके ऊपर जीन होगी और ये डिसाइड करेगा RH फैक्टर को. तो जो RH फैक्टर है इसकी बात करें तो ये क्या होगा, RH factor. Majority of the persons they are having this RH factor. That means the person having RH factor, that means a special type of protein, RH protein on the membrane of RBC, they are termed as RH positive, and the persons who are devoid of this factor they are termed as RH negative. So, this factor, RH factor, first of all it was found, it was described in rhesus monkey. It was first described by Landsteiner and Weiner in the year 1940. And it was found in monkey, rhesus monkey, in rhesus monkey, and therefore this is termed as RH factor. RH from rhesus, therefore it is RH factor. And for this RH factor the gene is found on first chromosome. It is found on first chromosome, which lead to the formation of this protein, RH protein. That means the gene for RH protein or RH factor on first chromosome. The gene which decides, the gene which regulates whether the person will be RH positive or RH negative, that is being decided by the gene on chromosome number 1. So, the factor, the R, if it is capital R, that means homozygous dominant, in that case it will be RH positive. If it is heterozygous, even then it will be RH positive. If it is homozygous recessive, in that condition it will be RH negative. Likewise, capital T tall, capital T small t tall, if both the T are small, in that case only it is dwarf. Likewise, capital R, that is RH positive.
capital R, small r, RH positive, small r, it will be RH negative. Here it will be RH negative. So overall population of the world, around 85% of the persons, they are RH positive, and rest 15% of the person they are RH negative. अब यह है कि हमारा ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है या हमारा ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है, तो इट डजेंट मैटर कि हम में कोई डिफरेंसेज होंगे. दैट मीन्स द पर्सन फिनोटिपिकली और फिजियोलॉजिकली देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन RH पॉजिटिव एंड RH निगेटिव. तो जब भी कोई ब्लड ग्रुप की बात होती है तो इन नॉर्मल फिजियोलॉजी, आम जो हम लोग काम करते हैं, जो हमारी दिनचर्या है, जो भी बातें हैं, वहाँ ब्लड ग्रुप से कहीं कोई लेना देना हमारे जीवन में नहीं है. केवल और केवल इसकी ज़रूरत तब होती है जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है, जब ब्लड डोनेट किया जाता है. तो जब ब्लड लेने और देने की बात होगी, केवल और केवल उस समय इसकी महत्ता है, इसका इम्पोर्टेंस है. अदरवाइज इसका कहीं कोई लेना देना नहीं है. तो बॉदर होने की ज़रूरत नहीं कि हमारा क्या ब्लड ग्रुप है. जो भी ब्लड ग्रुप है, यू आर फाइन, यू आर फिट, नो प्रॉब्लम. तो यहाँ क्या होंगे, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट डिसाइड्स द RH फैक्टर, बट आउट ऑफ दैट दिस RHD is the predominant one that decides the RH factor. So this one is the most prevalent as well as most immunogenic. That means it is, if it is present, it will appear itself. It is like dominant. These are not so dominant. Therefore, basically, if this factor RHD is found, that means blood is RH positive, positive blood group. If D is absent, simply it is RH negative or negative. Suppose blood group is AB and D is absent, then it will be AB negative. If D is present, then it will be AB positive. So the positive and negative blood group is basically decided by the D factor. Therefore, sometimes it is termed as ABD, ABO and ABD also. At the time of determination of blood group, there is a kit, and that kit is termed as ABO or ABD kit, with the help of which we are determining the blood group of an individual. तो अब बात करते हैं कि जब RH पॉजिटिव और निगेटिव है तो कहाँ इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है या कहाँ इसको कंसीडर करने की ज़रूरत होती है. तो ये क्या होगा, दो केसेस हैं. देयर आर टू केसेस इन लाइफ वेयर वी आर कंसिडरिंग और देयर इज इम्पोर्टेंस ऑफ दीज फैक्टर्स. वन इज ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन. जब एक्सीडेंट होती है, जब सर्जरी होती है, तो उस समय क्या होंगे, ब्लड लॉस होगी और उस समय ब्लड डोनेट करने की बात होगी, प्लस पेशेंट को ब्लड दिए जाएंगे. तो उस समय देखना होगा कि जो व्यक्ति पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव मिलना चाहिए, जो निगेटिव है उसे निगेटिव मिलना चाहिए. यहाँ कहीं कोई परेशानी नहीं है. परेशानी तब होगी जब व्यक्ति निगेटिव है और उसे पॉजिटिव दिया जाए. यदि व्यक्ति पॉजिटिव है उसे निगेटिव दिया जाए, देयर विल बी नो प्रॉब्लम. सो फर्स्ट केस इज इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन. जब ब्लड देने की बात होगी तो केयर क्या करना है कि जो ब्लड ग्रुप है उसे कहीं कोई परेशानी नहीं है, वो ब्लड ग्रुप दिए जाएं. लेकिन परेशानी कब होगी, जब पेशेंट निगेटिव है और उसे पॉजिटिव दिया गया, क्योंकि जो पॉजिटिव है उसके पास एंटीजन है जबकि निगेटिव के पास कोई एंटीजन नहीं है. तो क्या होगा, जिस पर्सन को पॉजिटिव ब्लड दिया गया और पर्सन निगेटिव है तो क्या होंगे, उसकी बॉडी इस एंटीजन को ट्रीट करेगी एज नॉन सेल्फ, एंड देयर बॉडी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन एंड दे विल डिस्ट्रॉय द ब्लड गिवन टू द पेशेंट. जो आरबीसी दिए गए हैं डोनर के द्वारा, उस आरबीसी को ये डिस्ट्रॉय कर देंगे. इसलिए जब भी होगा तो यदि ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है तो ये RH पॉजिटिव को देंगे,
RH निगेटिव है तो RH निगेटिव को देंगे या लेंगे, नो प्रॉब्लम। या फिर RH निगेटिव ब्लड है, ये किसे दिया जाएगा, RH पॉजिटिव को, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम विल बी क्रिएटेड व्हेन दिस RH ब्लड विल बी गिवन टू RH निगेटिव। समस्या कहाँ होगी, जब RH पॉजिटिव ब्लड दे रहे हैं किसको, RH निगेटिव को, तो ये क्या होगा, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि जो पेशेंट है RH निगेटिव, इसे ब्लड दिया जा रहा है पॉजिटिव, इसके पास जो RBC के मेम्ब्रेन पे एंटीजन है, उसे इस व्यक्ति का ब्लड ट्रीट करेगा एज नॉन सेल्फ, एज इन्वेडर, एज समथिंग एल्स, एंड अगेंस्ट द फैक्टर the patient's body will start producing the B cells, they will start producing immunoglobulin, and they are antibodies which will ultimately destroy the RBC of the blood which has been given to their body. The second case, incompatibility during pregnancy. यहाँ भी in general कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल एक खास कंडीशन है when father is RH positive, father is RH positive and mother is RH negative। बस ये कंडीशन है जहां प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और इसके कारण क्या होगा, जो बच्चा, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही है, तो वहां क्या है, RH पॉजिटिव, दैट मीन्स एंटीजन इज देयर। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कहीं कोई परेशानी नहीं है, जो पहला बच्चा होगा कहीं कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मदर के बॉडी में डेवलपिंग फीटस है, बट दैट इज कंप्लीटली सेपरेटेड, जो प्लेसेंटा है उसके द्वारा कंप्लीटली सेपरेटेड है। तो इनबॉर्न बेबी, जो डेवलपिंग फीटस है, उसके ब्लड और मदर के ब्लड में कहीं कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है, तो फर्स्ट चाइल्ड में देयर विल बी नो प्रॉब्लम ड्यूरिंग फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी कब होगी, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, after completion of pregnancy, during childbirth there will be rupture of blood vessels, and during that some of the blood cells, some of the RBC from the fetus will enter into the mother's blood stream, and now what will happen, the mother's blood stream, they will start producing antibody against this factor. What will happen, that antibody will destroy the RBC of the fetus, but the antibody which is being produced against that factor, that will remain forever. That antibody, that is having memory cells, and they will remember it for longer period of time, for whole life. What happens in vaccination? In vaccinations, our body produces antibody against the vaccine, against the microbe which is being introduced in our body as vaccine. तो क्या होंगे, फर्स्ट टाइम कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सेकेंड टाइम जब कंसीव करेगी, फिर क्या होगा, बच्चा पल रहा है पॉजिटिव, मदर के बॉडी में पहले से उसके अगेंस्ट फैक्टर है, एंटीबॉडी है, और वो एंटीबॉडी क्या होगी, लीकेज होगा थ्रू प्लेसेंटा, और वो एंटीबॉडी क्या करेगी, दे विल स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द RBC ऑफ द फीटस। तो बच्चे जो पैदा होंगे उसमें RBC की कमी होगी, बच्चा एनीमिक होगा या बच्चे की डेथ हो सकती है, और इसको बोलते हैं हम लोग HDN, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न। हीमोलाइटिक, दिस इज HDN, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न, जिसमें क्या होंगे, जो RBC है उसको डिस्ट्रक्ट करेगी, है ना। RBC क्या होगा, हीमोलाइटिक, लाइसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन RBC, so there will be destruction of RBC, child will be anemic, or there may be death of the child। और इसको हम लोग बोलते हैं, इसके लिए दूसरा टर्म दिया गया है इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, this is the another name, erythroblastosis fetalis for hemolytic disease of the newborn। तब इसके लिए करना क्या होगा, डॉक्टर्स को पता है कि मदर RH निगेटिव है,
हस्बैंड RH पॉजिटिव है, तो ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी ही, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट मीन्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, क्या होगा, जिस समय मिक्सिंग होगी ब्लड की, चाइल्ड के ब्लड की मिक्सिंग मदर के बॉडी में होंगे, तो क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड विल बी देयर, दैट मीन्स जो एंटीजन है, RH फैक्टर है, वो बहुत ही कम अमाउंट में होंगे, तो उस समय क्या किया जाएगा, रेडीमेड एंटीबॉडी अगेंस्ट RH फैक्टर विल बी प्रोवाइडेड टू द मदर, तो मदर को उस समय जब दे दिया जाएगा तो स्मॉल अमाउंट है, उस एंटीजन को क्या करेगी, वो डिस्ट्रॉय कर देगी, तो उसके लिए जो मेडिसिन है दैट इज रोगम, इसे प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके कारण क्या होंगे, इट विल डिस्ट्रॉय द एंटीजन, दैट मीन्स द RH फैक्टर which has entered administration of rogam at the time of child birth, that means first child birth, जब फर्स्ट चाइल्ड बर्थ होगी उस समय में क्या किया जाएगा, रोगम के इंट्रोडक्शन से, रोगम के एप्लीकेशन से क्या होंगे, जो भी RBC इन किए हैं मदर के बॉडी में हैविंग RH फैक्टर दैट विल बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि फर्दर कोई एंटीबॉडी की प्रोडक्शन नहीं होगी एंड the further pregnancy will be safe. So this is all about RH factor. उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यदि कहीं कोई परेशानी हो बेहिचक आप कमेंट करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।